ठीक है. Okay, so introduction to trigonometry. Tree, T-R-I. The meaning of this tree means three. Or gono. The meaning of gono means sometimes it is referred as sides and sometimes it is referred as angles. And metry. This meaning of metry is something which you can measure. So in this, what you will going to measure? In this, you will going to measure either sides or angle. Okay, in this particular chapter you will always going to draw right angle triangle. Okay, you will always going to draw right angle triangle. Most of the times you are drawing right angle triangle like this, but in this particular chapter you will avoid drawing the right angle triangle like this, but you will going to draw in this way. Oh, not this way, just a minute. Not in this way. 1 minute. I am rotating it properly. I have not rotated properly. Just a minute. Okay, so it's not like that. It will be like this. Okay, so 99% of the time, even I will say 100% of the time, you will always going to draw right angle triangle like this. Here it will be theta. What is this theta mean? Theta means angle. What could be that angle? That angle can be say 15 degree or 30 degree or 45 degree or 60 degree or say what we say 90 degree. Okay, that's it. You have only till this in your scope, in your syllabus. You don't have any other. Out of these angles you have also zero angle. So what is there in your syllabus? Theta with 0 degree, with 30 degree, with 45 degree, with 60 degree, and with 90 degree. Only these angles you have. Okay, fine. Now if I call this particular angle as this particular triangle as ABC, this is A, this is B, and this is C. So 90 degree will be this. Okay, now this side AC, इसको मैं स्मॉल b से रेफर करूंगा. क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला एंगल कैपिटल B है. ये साइड BC, इसको मैं लिखूंगा स्मॉल a. क्यों? क्योंकि उसके सामने वाला एंगल कैपिटल A है. सिमिलरली AB साइड को मैं रेफर करूंगा स्मॉल c से. क्यों? क्योंकि उसके सामने वाला एंगल कैपिटल C है. तो कैपिटल C के सामने वाली साइड स्मॉल c होगी. कैपिटल A के सामने वाली साइड्स स्मॉल a होगा. कैपिटल B के सामने वाली साइड्स स्मॉल b होगा. कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल आपने देखा तो आप कौन सा थ्योरम यूज करोगे? हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? वो बोलता है हाइपोटेन्यूज द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो साइड्स को स्क्वायर करके ऐड करना है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट formula, which is Pythagoras theorem, which you will going to extensively use in this particular chapter. Okay, now this chapter is, the name of this chapter is Introduction to Trigonometry. So you have some new terms that in this chapter, that is called trigonometric ratio. So whenever we talk about ratio, what is that? That is something, okay, something in a numerator divided by something in denominator. Okay, that is what is the ratio means. So if I am saying a ratio as 1/2, it can be 2/4, it can be 3/6, or in general I can say I am multiplying by x here, I am multiplying by x here. I can say that as x by 2x also, where x is a common multiple. Okay, now trigonometry ratios, you know, it is a ratio, but what is that ratio is? So that I am explaining you now, which is most important in this chapter. What is that? Sine ratio. What is the spelling of sine? It is SINE, sine. But
this sign does not have any value, does not have any meaning. So to give meaning to this particular sign, we always attach this particular word with angle. Okay, we always attach this particular word with some angle, and whenever we attach this particular word with angle, we don't write sign then angle. Instead of that, we write only first three words, not words, first three character, and angle can be theta. ठीक है, तो ये साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरा इस डायग्राम में देखो ये है साइन थीटा, है ना, यहाँ पर थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड, थीटा के सामने वाली साइड का नाम क्या है, ए है, तो आप लिखोगे ए, ठीक है, दिस इज ए, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय हाइपोटेनस, व्हाट इज द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज बी, तो आप साइन थीटा को ए बाय बी लिखोगे। ओके, वैसे ही और एक टर्म है, उसको बोलते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट, that is COS secant, CANT, cosecant, and then again it is associated with some angle. Cosecant doesn't have any value, okay, it has meaning only if when you are attaching with some angle like sine. So similarly, instead of cosecant, you will write only COS, cos, and you will say cos, and what is this cos, it has to be associated with angle, so which is this theta. So cos theta is what, adjacent side upon hypotenuse. So adjacent side is what, c is the adjacent side. Why? Because see, थीटा के सामने वाला तो a है, तो वो तो हमने साइन में यूज कर लिया, और थीटा के एडजेसेंट साइड या तो एक आप b बोल सकते हो या तो आप एक c बोल सकते हो, c आपको बोलना है, b नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि b एडजेसेंट साइड होते हुए भी मैं नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि इट इज ए हाइपोटेनस, तो c इज माय एडजेसेंट साइड, c डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय सबसे बड़ी साइड दैट इज हाइपोटेनस, तो साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, ये दो साइन थीटा और कॉस थीटा इज द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आप बाकी के रिमेनिंग रेशियोज फाइंड करते हो। रिमेनिंग रेशियोज कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं नेक्स्ट। ओके, रिमेनिंग रेशियो के नाम है, एक का नाम है टेन थीटा, टेन मतलब टेंजेंट थीटा, सो आई विल राइट टेन थीटा एज व्हाट, एज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है टेन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा आना बहुत जरूरी है, कॉस थीटा आना बहुत जरूरी है, साइन थीटा और कॉस थीटा से ही बाकी के चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनते हैं। कौन कौन से, पहला मैं टेन थीटा बता रहा हूं, क्या है वो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है, ए बाय बी, कॉस थीटा है सी बाय बी, तो आप जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ए बाय सी, मतलब क्या हुआ, मतलब टेन थीटा हुआ ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये ऐसे ही याद रखना है टेन थीटा को, क्या, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऐसे याद रखोगे तो बाकी के सब सम्स आप आसानी से कर पाओगे, नहीं तो तकलीफ होगी। एक बार साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आपको पता चल गया तो बाकी के तीन फंक्शंस और रेशियोज फाइंड करना बहुत आसान है। कौन कौन से है वो, पहला नाम है कोसिकेंट, ओके, कोसिकेंट थीटा, जिसको हम कोसेक बोलते हैं, कोसेक, ओके, और उसके साथ एंगल आएगा। अच्छा, इसका थर्ड कैरेक्टर क्या है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, थर्ड कैरेक्टर एस है, तो यहां पर एस आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है साइन में, तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा, सो 1 अपॉन साइन थीटा इज व्हाट, इज नथिंग बट कोसेक थीटा, तो ये था ए बाय बी, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा बी बाय ए, दैट्स इट, हो गया, दिस इज कोसेक थीटा। अब हम बात करेंगे फोर्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, उसका नाम क्या है, सिकेंट थीटा,
सीकेंट थीटा में हम सिर्फ SEC लिखेंगे, मतलब पूरा सीकेंट CANT थीटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 कैरेक्टर लिखेंगे और उसके बाद थीटा लगा देंगे। ये इसका थर्ड कैरेक्टर क्या है? C है। C आपको कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। तो सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1/cos थीटा। ठीक है, cos थीटा C/B है, तो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा? B/C। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सिक थीटा मिल गया। उसके बाद और एक है लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दैट इज कॉट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। इसका थर्ड कैरेक्टर क्या है? T है। तो T से आपको ऊपर क्या दिख रहा है? tan दिख रहा है। तो व्हाट इज योर tan? tan इज योर साइन बाय कॉस। तो आप इसको कॉट थीटा को या तो 1/tan थीटा लिख दो, या तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दो, या तो एज पर द डायग्राम इफ tan थीटा इज A/C, कॉट थीटा विल बी C/A। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, नाउ दिस ट्राइंगल इज से XYZ ट्राइंगल। ये X है, ठीक है, और ये Y ले लो और ये Z ले लो। दिस इज 90 डिग्री। इस चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज करते हैं हमेशा। यहां पर कुछ तो एक एंगल है, कौन सा है पता नहीं। अगर आपको एंगल नहीं लिखना है तो मत लिखो, यू कैन डायरेक्टली से दिस इज एंगल X। अभी हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। उसमें से सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नाम क्या है? साइन थीटा, या फिर इस डायग्राम में मैं लिखूंगा उसको साइन एक्स। चलो मैं थीटा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, थीटा लिख देता हूं। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है सीधा। एस का मतलब होता है सीधा, सीधा मतलब स्ट्रेट। तो इस एक्स के सामने कौन सी साइड आपको दिख रही है? ZY दिख रही है। ठीक है, यहां कैपिटल एक्स है, तो इसकी डिस्टेंस को मैं क्या मानूंगा? स्मॉल x मानूंगा। यहां कैपिटल Z है, तो इसकी डिस्टेंस को मैं क्या मानूंगा? स्मॉल z मानूंगा। यहां कैपिटल Y है, तो यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस को क्या मानूंगा? स्मॉल y मानूंगा। ठीक है, ये मतलब स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन होता है। तो साइन थीटा क्या है? सीधा। सीधा क्या दिख रहा है? x। तो मैं इसको लिखूंगा x डिवाइड बाय क्या? सबसे बड़ी साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज विच इज y। तो मैं यहां पर इसको x/y लिखूंगा। ये हो गया साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा सीधा नहीं बल्कि तिरछा, मतलब एडजेसेंट साइड। तो मैं यहां z लिखूंगा, z डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज y। तो ये साइन हो गया और कॉस हो गया, बस खत्म। अब ये दो चीज अगर हमें आ गई तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अपने आप आ जाते हैं। कैसे? फॉर्मूला से। कौन सा है वो? tan थीटा को आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन cos theta. What is your sin theta? It is x upon y. And what is your cos theta? It is z upon y. तो डिनोमिनेटर में ये जो y जो है ना, ये कैंसल हो जाएंगे एंड यू विल गेट ओनली x अपॉन z। x अपॉन z यू विल गेट एज tan थीटा। ठीक है, अब और कुछ रिलेशंस है, और भी कुछ रेशियोज है। कौन से हैं? एक का नाम है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में थर्ड कैरेक्टर क्या है? s। दिस इज c इज फर्स्ट, o इज सेकंड, s इज थर्ड। तो इसमें से s आपको कौन सा दिख रहा है? s मुझे दिख रहा है ये वाला। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या था? x/y। तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, डेट इज y/x। सिमिलरली और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसको बोलते हैं सिक थीटा। सिक थीटा में थर्ड कैरेक्टर c है। c यहां पर कहां दिख रहा है मुझे? कॉस में दिख रहा है c। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1/cos थीटा लिखूंगा। cos थीटा क्या है? z/y। तो सिक थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y/z। सो इजी। tan थीटा क्या है? x/z। ठीक है, तो सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो नाम है
वो है कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। इसका थर्ड कैरेक्टर क्या है, T है। तो T मुझे यहाँ कहाँ दिख रहा है, tan में दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। और tan थीटा एक्चुअली होता क्या है, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं इसको cos थीटा को ऊपर ले जा सकता हूँ और मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा upon sin theta. So what is your cos theta? Cos theta is z by y. It is your z by y. And what is sin theta? Sin theta is x upon y. तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे, ये y और ये y कैंसिल करके आप डायरेक्टली z by x लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप tan थीटा से भी लिख सकते हो। cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan का उल्टा 1/tan। यहाँ क्या है, x by z, so you can directly write z by x. This is your cot theta. Understood now? Fine. Now this is my triangle ABC. So let me name this triangle. समझो मैंने इसको नेम किया A और इसको नेम किया B और इसको नेम किया C। ये क्या है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स, वर्टाइसेस, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, ठीक है। कैपिटल A की सामने वाली साइड स्मॉल a होगी, कैपिटल B की सामने वाली साइड स्मॉल b होगी, कैपिटल C की सामने वाली साइड स्मॉल c होगी, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है वो, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है एक साइड की स्क्वायर प्लस दूसरे साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज द होल स्क्वायर। ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, मैं डिवाइड बाय बी स्क्वायर करूंगा ऑन बोथ द साइड्स। यहां मैंने डिवाइड बाय बी स्क्वायर किया, यहां मैंने डिवाइड बाय बी स्क्वायर किया और यहां भी मैंने डिवाइड बाय बी स्क्वायर किया। तो क्या मिलेगा मुझे, यहां मिलेगा a अपॉन बी द होल स्क्वायर और यहां मिलेगा c अपॉन बी द होल स्क्वायर और यहां मुझे मिलेगा बी स्क्वायर कैंसिल होके 1, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको है ना मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है, थीटा मान लिया। अब मुझे बताइए व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है सीधा अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब 90 के सामने वाला। तो डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी सी अपॉन बी। तो साइन थीटा हो गया सी अपॉन बी। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा सीधा नहीं बल्कि एडजेसेंट साइड विच इज ए डिवाइड बाय व्हाट, 90 के सामने वाला, डेट इज बी। तो cos थीटा विल बी माय a डिवाइड बाय b। अब आप देखो a डिवाइड बाय b जो है वो मुझे यहां दिख रहा है, तो मैं a डिवाइड बाय b की जगह लिखूंगा cos थीटा द होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a बाय b cos थीटा है। सिमिलरली c बाय b जो है, यहां से आप देखो वो sin थीटा है, तो मैं यहां लिखूंगा sin थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं जनरली ऐसे लिखना चाहिए, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू विल गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एक्सटेंसिवली, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, राइट, ओके। अभी इसी फॉर्मूला से और भी दो फॉर्मूले डिराइव होते हैं, इनफैक्ट मल्टीपल फॉर्मूले डिराइव होते हैं। कैसे, ये आप यहां समझिए। पहले मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसको मैं डिवाइड करता हूं कॉस स्क्वायर थीटा हर जगह, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं, हर जगह कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो ये मुझे मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये मुझे मिलेगा 1 और 1 बाय कॉस थीटा होता है सिक थीटा, तो ये हो जाएगा सिक स्क्वायर थीटा। दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू विल गोइंग टू यूज, ओके। नेक्स्ट यही चीज मैं वापस लिखता हूं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही चीज मैंने वापस लिखी। लेकिन अब इस बार मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड किया हर जगह, तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 1 प्लस
कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन होता है कोसिक, तो ये हो जाएगा कोसिक स्क्वायर थीटा। दिस इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू विल गोइंग टू यूज। अगर आपको ये फॉर्मूले आ गए जो मैंने आपको बताया है, तो आप कुछ हद तक बहुत सारे सम्स अपने आप खुद सॉल्व कर सकोगे विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन। ठीक है, so in triangle ABC, angle B is 90, angle C I am assuming as theta, then what will be angle A? That angle A will be 90 minus theta. How I got this angle A as 90 minus theta? Because I know angle sum property of a triangle. Interior angles of a triangle, sum of interior angles of a triangle is equal to 180 degree. So angle A I will write as it is, angle B is 90, angle C is theta is equal to 180. I will going to write 90 plus 90. 90 cancel, theta I am transposed from left hand side to right hand side, so angle A will be 90 minus theta. Okay, तो ये कैपिटल A है, तो this side from here to here this will be small a. Similarly ये कैपिटल C है, so this will be small c. This is capital B, so this will be small b. Okay, now okay, now this is a triangle ABC. In this triangle ABC I have found sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta, cot theta, and then if this is theta, this angle is theta, then what will be this theta? This angle will be 90 minus theta. तो similarly मैंने sin, cos, tan, sec, cosec, cot theta सभी का 90 minus theta का भी एंगल निकाल दिया, और फिर मैं देख पा रहा हूं क्या कि sin theta, this sin theta is equal to this sin theta is equal to cos of 90 minus theta. ये एक फॉर्मूला हो गया है। सिमिलरली cos theta is equal to 90 minus theta, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a by b है, यहाँ भी a by b है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला होगा a by c, यहाँ पर है, ये a by c यहाँ पर है, और a by c यहाँ पर है, तो तीसरा फॉर्मूला हो गया tan of 90 minus theta, tan of 90 minus theta is equal to cot theta, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला है कौन सा? tan of theta is equal to cot of 90 minus theta। क्यों? क्योंकि ये c by a है, ये c by a है। सिमिलरली और एक फॉर्मूला sec of theta is equal to cosec of 90 minus theta, ये और एक फॉर्मूला हो गया। उसी तरह sec of 90 minus theta is equal to cosec of theta, ये और एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इन जनरल यू कैन से दिस sin of 90 minus a is equal to cos a, यहाँ पर a क्या है? a is a angle। okay, so similarly these are very important results. So starting the recording, so here I will going to have angles, here I will going to have what? I will going to have angles। तो मेरा स्टैंडर्ड एंगल्स होता है 0 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री के बाद होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद मेरा स्टैंडर्ड एंगल 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री के बाद मेरा स्टैंडर्ड एंगल 60 डिग्री होगा, 60 के बाद 90 होता है, और 180 भी एक तरीके से हम स्टैंडर्ड ले सकते हैं, लेकिन आपको इस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके। और स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मैं यहां लिखूंगा नीचे। ठीक है, पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? साइन, ये लिखूंगा साइन, फिर लिखूंगा मैं कॉस, और फिर लिखूंगा टेन। बाकी का साइन कॉस से हम नीचे और लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले ये जीरो एंगल स्टार्ट हो रहा है जीरो से, राइट? और हमारे सिलेबस में सिर्फ 90 तक ही है, 180 नहीं है। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन इग्नोर दिस लाइन, इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस 180 वाला। ठीक है, इट इज ओनली देयर टिल 90। तो मैं क्या करूंगा? मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा फ्रॉम जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो है इसलिए। तो मैंने यहाँ लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, और फिर लिखा 4। लास्ट में क्या नंबर दिख रहा है मुझे? 4। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 के साथ।
सबको मैं डिवाइड करूंगा 4 के साथ। तो जब मैंने सबको 4 के साथ डिवाइड कर लिया तो ये मुझे मिलेगा 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, और ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहां मुझे मिलेगा 0, यहां मुझे मिलेगा 1/2, यहां मुझे मिलेगा 1/√2, यहां मुझे मिलेगा √3/2, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है। तो ये जो वैल्यूज जो मैंने अभी लिखी है, ये वैल्यूज क्या है? ये है sin 0 इज 0, sin 30 इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2, एंड sin 90 इज 1। ओके, आगे का अभी मुझे cos 0 निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? जो आपने यहां नंबर लिखे हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। यहां लास्ट में 1 है, यहां 1 लिख दो, ठीक है। यहां सेकंड लास्ट में √3/2 है, यहां √3/2 लिखो। ये बीच वाला 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा, और ये 0 होगा, ठीक है। तो साइन और कॉस आपका मिल गया। एक बार साइन और कॉस आपका मिल गया तो बाकी का टेन वगैरह निकालना सभी आसान है, ठीक है। टेन क्या होगा? साइन बाय कॉस, मतलब 0/1। तो 0/1 तो 0 ही होता है। और टेन 30 कितना होगा? 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो 2 और 2 कैंसल हो जाएगा और आपको मिलेगा सिर्फ 1/√3। सिमिलरली tan 45, ये 1/√2 कैंसल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1। सिमिलरली यहाँ पर √3/2 डिवाइड बाय 1/2, ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा एंड यू विल गेट tan 60 एज √3। और यहाँ पर 1/0, 1/0 क्या होता है? एक्चुअली 1/0 इज नॉट डिफाइंड, this is not defined. 1/0 we never defined it, okay. It is something which is impossible, which is not defined, इसीलिए इसको not defined लिखा है। Clear? Okay. So similarly we can find cosec of these angles, these standard angles, sec of these standard angles, and cot of these standard angles as shown. अभी देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है वो है x² माइनस y² इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई। ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अभी अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ये पहला वाला फॉर्मूला। क्या है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 स्क्वायर कर सकते हैं और फिर यहाँ पर x² माइनस y² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख दूंगा मैं, ओके। या फिर एक काम करता हूं, इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख देता हूं, और ये जो है इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां मैंने ये फॉर्मूला लगाया x² माइनस y² का। अब इससे मैं क्या करूंगा, एक साइन थीटा को मैंने यहीं रखा और यहाँ पर एक कॉस, एक वाला टर्म को मैंने यहीं लिखा, और ये जो है इसको मैं नीचे ले गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये जो दूसरा साइन थीटा था इसे मैं यहां ले गया, ओके। यही चीज मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, कैसे? साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये एक मेरा और फॉर्मूला बन गया, ओके। तो सिमिलरली वी कैन आल्सो
derived few more formula like this. So cos square theta I can write as cos theta into cos theta. 1 minus sin square theta I can write as 1 square minus sin square theta. That is nothing but 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. Here again I can write cos theta is equal to, यहां मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन थीटा. ये cos स्क्वायर है तो नीचे एक cos थीटा ले आऊंगा, और ये ऊपर 1 प्लस साइन थीटा है तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा. ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा. सिमिलरली सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस नो नो नॉट cos थीटा, सॉरी, दिस इज sin थीटा. This will be 1 sorry, this is 1 minus sin theta. Okay, and this will be 1 plus sin theta upon cos theta. The way I have derived these formulae from what? From sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Similarly, I can also derive from 6 square theta minus tan square theta is equal to 1. What is that? I know that 1 plus tan square theta is equal to 6 square theta. I know this. I will going to transpose this tan square theta over there. So I will get 1 is equal to 6 square theta minus tan square theta. This again I will going to apply x square minus y square formula. That will be 6 theta minus tan theta into 6 theta plus tan theta. Now I am deriving one more formula, that is 1 upon 6 theta minus tan theta is equal to 6 theta plus tan theta. Or you can even write this 1 upon 6 theta plus tan theta is equal to 6 theta minus tan theta. So if you know one formula, you can derive other formula like this, and these formula will be useful to you when when solving proved type of question. Similarly, we have one more we can derive one more formula. What is that? 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So I can write this as 1 is equal to cosec square theta minus cot square theta. I can apply the formula of x square minus y square. That is cosec theta minus cot theta into cosec theta plus cot theta. This I can write again as 1 upon cosec theta minus cot theta is equal to cosec theta plus cot theta. Or we can also say 1 upon cosec theta plus cot theta is equal to cosec theta minus cot theta. So these formulas are very, very important. Understood? Now this is 3 cot A is equal to 4. तो सबसे पहला काम इस चैप्टर में है डायग्राम बनाना. तो इससे क्या है, अपना काम आसान हो जाएगा, इसलिए हमने ये डायग्राम बना लिया. अब वो क्या बोल रहा है, cot A is equal to 4. तो मुझे A नाम देना पड़ेगा, तो ये A दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है. अब ये बोल रहा है 3 cot A is equal to 4. तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 3 ओके 3 by 4 is equal to 1 by cot A. ऐसा लिख सकता हूं मैं. क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये जो 4 जो था वो नीचे लेके गया, cot A जो था वो यहां लेकर गया. तो 1 by cot A क्या होता है? 1 by cot A होता है tan A. तो tan A मेरा 3 by 4 हो गया. तो इस डायग्राम से मैं tan A बनाऊंगा. कहाँ होगा tan A? tan A होगा इस एंगल के सामने वाली साइड 3 और एडजेसेंट साइड 4. तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो हाइपोटेनस होगी ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 25, विच इज नथिंग बट 5.
तो अब मुझे यहां से tan a मिल गया। क्या है tan a? 3/4। तो tan स्क्वायर a क्या होगा? tan स्क्वायर a होगा, इसको स्क्वायर करने का, तो ये हो जाएगा 9/4, 4 16 होगा। ठीक है, ओके। और cos a क्या होगा? cos a यहां से होगा 4/5, 4/5 होगा। तो cos स्क्वायर a क्या होगा? 4/5 द होल स्क्वायर, तो ये हो गया 16/25। फिर sin a, व्हाट इज sin a? sin a इज 3/5, तो sin स्क्वायर a क्या होगा? 3/5 द होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9/25। तो यहां बोला है चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। तो उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा मैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, सो व्हाट इज tan स्क्वायर a? tan स्क्वायर a मुझे यहाँ पर मिला है 9/16। तो ये 9/16 में नीचे लिखूंगा। ये हो गया 9/16, 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, इज अगेन 9/16। ठीक है, यहाँ पर 16 चाहिए, यहाँ भी 16 चाहिए, यहाँ भी 16 चाहिए, यहाँ भी 16 चाहिए। 16 16 कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज 16 माइनस 9? 16 minus 9 is your 7. And what is 16 plus 9? 16 plus 9 is 25. तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड 25 आ गया। अब मुझे राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड क्या है? वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। व्हाट इज cos स्क्वायर a? इट इज 16/25 इज cos स्क्वायर a। तो मैं यहां लिखूंगा 16/25 cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। क्या है? साइन स्क्वायर इज 9/25, तो मैं इसको 9/25 लिखूं। तो 16 माइनस 9 अपॉन 25। 16 माइनस 9 कितना होता है? 7, 7/25। तो राइट हैंड साइड मेरा 7/25 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी मेरा 7/25 आ रहा है, दोनों भी मैच कर रहे हैं। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. It means this is equal. Clear? Fine. Okay, so question number 11th का second sum. What it says? It says sec A is equal to 12/5 for some values of angle A. इसका मतलब ये है कि for some values of angle A, मतलब कोई तो एक कुछ तो वैल्यू होगा A की कि सिक ए 12/5 हो, तो वो है या नहीं वो चेक करना है। तो हमेशा इस ट्रायंगल में कुछ भी करने के, इस चैप्टर में कुछ भी करने के पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये सिक ए है। सिक ए इज 12/5, तो व्हाट विल बी वन ऑफ सिक ए? रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 5/12। तो 1/6 क्या हो गया? वो होगा cos ए। cos ए इज 5/12, तो समझो ये a है, तो cos a विल बी 5 एंड दिस विल बी 12। ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या? फॉर सम वैल्यूज ऑफ दिस, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज 5 स्क्वायर प्लस समथिंग द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझो मैंने इसको x मान लिया, तो 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर। दिस इज करेक्ट, सो दिस इज ट्रू, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। ओके, फिर तू बोलेगा सर ऐसे कैसे? कुछ फॉल्स भी करके बताओ ना, कुछ फॉल्स का सिनेरियो लेके बताओ। चलो ठीक है, लेके बताते हैं फॉल्स का सिनेरियो। क्या? मैं लेता हूं cos a इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, अब ये cos a इज इक्वल टू 12/5 पॉसिबल है क्या? फॉर सम वैल्यू ऑफ a। तो अपन चेक करते हैं ट्राइंगल बना के, राइट एंगल ट्राइंगल बना के चेक करते हैं अपन। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ओके, और यहां पर मेरा a हो गया,
कॉस ए क्या बोलता है 12/5, 12 मतलब ऑपोजिट साइड 12, 5 मतलब हाइपोटेन्यूज 5। क्या ऐसा ट्रायंगल होगा जहां पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ छोटी होगी बाकी की साइड से? नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये कंडीशन होगी ही नहीं। सो cos a is equal to 12/5 is false, whereas sec a is equal to 12/5 is true. Understood? ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equal to √3, मतलब tan का ऐसा कौन सा एंगल होगा जो √3 बनाएगा? तो मुझे पता है tan tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, ये मुझे पता है। तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, क्या? a plus b is equal to 60 डिग्री, ये मुझे इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा tan of a minus b is equal to 1/√3, मुझे ये भी पता है क्या कि tan of 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√3, ये मुझे पता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे मैंने कंपेयर किया तो मुझे मिलेगा a minus b is equal to 30, तो a minus b is equal to 30 डिग्री मुझे मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके मैं a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, समझो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 2a, और प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएंगे, 30 प्लस 60 विल बी 90। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a विल बी 45 डिग्री। सिमिलरली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? यहाँ पर मैंने a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 60 minus 45, that comes to 15 डिग्री। तो मुझे a और b की वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन यहां उसने एक कंडीशन दिया है। क्या दिया है कंडीशन? कंडीशन दिया है थीटा इज लेस देन a प्लस b लेस देन एंड इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल्स मेरे बनेंगे, ठीक है, ये जो एंगल्स मेरे बनेंगे a और b के, ठीक है, ये a और ये b, ये दोनों भी जो एंगल होंगे a और b के, डेट विल बी एक्यूट एंगल। ठीक है, डेट विल बी एक्यूट एंगल। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो हर हाल में 90 के ऊपर तो हो ही नहीं सकते, 90 से छोटे ही होंगे या फिर इक्वल टू 90 होंगे। ठीक है, तो आवर आंसर इज a is 45 and b is 15 degree. Understood? Fine. So let's start exercise 8.3, question number 1a. So what it says, sine of 18 degree. तो सबसे पहला काम है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। ठीक है, और इसमें 18 डिग्री ये बना देता हूं मैं। तो ये वाला कितना होगा? ये होगा 19 minus 18 which comes to 70 डिग्री। तो ये 72 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 उसने पूछा है कि साइन ऑफ 18 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 72 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 72। अब ये 18 जो है इसको मैं लिखता हूं 90 माइनस 72। ठीक है, 90 माइनस 72 जो होता है ना वो ये 18 होता है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, that will be what? That will be cos थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा cos of 72 डिवाइड बाय cos of 72। ये दोनों कैंसल and you will get answer as 1. 1 is the answer for this question. Got it? Fine. Okay, so let's start question number 2. First one, tan 48. Now I will write, how can I write this 48? I can write 48 as 90 minus 42. 90 minus 42 is nothing but 48, right? So मेरा ये 48 और ये 42 ये मेरा एडजस्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो करना पड़ेगा। सिमिलरली 23, इस 23 को मैं लिखूंगा 90 minus 23। ओके, सो 90 minus 23 is what? 67। तो मेरा ये भी एडजस्ट हो जाएगा। कौन सा? ये 23 और 64, ये भी मेरा
मतलब एडजस्ट हो जाएगा। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10, 48 नहीं लिखूंगा मैं, 48 की जगह 90 माइनस 42 लिखूंगा, और उसके बाद इमीडिएटली 10 42 लिखूंगा, ठीक है। और 10 23 की जगह में लिखूंगा 10 10 23 की जगह में लिखूंगा 10 23 लिखता हूं, चलो 10 23 की जगह 10 23 ही लिखता हूं। और 10 67 जो है ना, यहां मैं लिखता हूं 10 ऑफ 90 माइनस, एक मिनट जगह नहीं है, थोड़ा एक्सटेंड करता हूं इसको, ठीक है। तो इट इज 90 माइनस 23। ओके, अभी यहां पर फॉर्मूला देखोगे आप, 10 ऑफ 90 माइनस थीटा कितना है, 10 ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज कॉट थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा कॉट ऑफ 42, और ये हो जाएगा 10 ऑफ 42, और ये हो जाएगा 10 23। नाउ 10 ऑफ 90 माइनस थीटा इज व्हाट, इट इज कॉट थीटा विच इज कॉट 23। अब इस कॉट 42 को मैं 1/10 42 लिख सकता हूं, और ये 10 42 यहां पर आया। फिर 10 23, cot 23 को मैं 1/10 23 लिख सकता हूं। दिस 10 23 23 कैंसल, 10 42 42 कैंसल, इट इज इक्वल टू 1 which is equal to right hand side, hence proved. Clear? Fine. So let's start question number 3rd. If tan 2a, so it says if tan 2a is equal to cot of a minus 18, okay, where 2a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, तो इस पर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ए की वैल्यू हमेशा एक्यूट ही रहेगी, ठीक है। फाइन, तो यहाँ तो कॉट है, यहाँ टेन है, तो मुझे इस टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं टेन को कॉट में कन्वर्ट, या फिर कॉट को मुझे टेन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं? आप इसको देख के कर सकते हो, tan ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट है, इसको देख के कर सकते हो। या फिर कॉट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan है, इसको देख के कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, ये tan, ये है ना, ये tan थीटा, यहाँ पर मेरा ये 2a को थीटा मान लूंगा मैं, तो मैं इसको कॉट में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या होगा, ये होगा कॉट ऑफ 90 माइनस 2a होगा, ये कॉट ऑफ 90 माइनस 2a। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला, आई हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। tan a की जगह मैंने cot ऑफ 90 माइनस a लिख दिया, यहाँ पर तो 2a है, तो cot ऑफ 90 माइनस एंगल मेरा 2a था, तो यहाँ मैंने 2a लिख दिया। दिस इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18, ठीक है। अभी देखो यहाँ cot है, यहाँ cot है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अभी a को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा a प्लस 2a, और 18 को यहां लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18। तो a प्लस 2a इज 3a, और 90 प्लस 18 विल बी 108। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी 36, ठीक है। एक बार वैल्यू ऑफ a क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a ना, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ a ही पूछा है, तो 36 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ a। सिंपल। ठीक है, तो ये बोल रहा है ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC बनाना है, तो मैंने बनाया ट्राइंगल ABC कैसा भी, ठीक है। ये है मेरा A, दिस इज माय B एंड दिस इज माय C। ओके, ABC इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोला है, कैसा भी ट्राइंगल बनाना है, तो मैंने ऐसा बनाया। शो डेट साइन ऑफ B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ A बाई 2, ठीक है। तो मुझे मालूम है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज व्हाट, इज 180 डिग्री। लेकिन यहाँ तो वो डिवाइड बाय 2 कर रहा है, वो भी B और C को साथ में लिया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा, B और C को साथ में लिखूंगा, और ये जो A जो है इसको ट्रांसपोज कर दूंगा यहाँ से वहां पर, तो ये माइनस A हो जाएगा। लेकिन इसने तो B प्लस C डिवाइड बाय 2 किया है, तो मैं भी डिवाइड बाय 2 करता हूँ, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। फिर उसने क्या किया है,
उसने साइन लिखा है तो मैं भी साइन लिखता हूं, एडिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स, तो मैंने इसको साइन बना दिया, इसको भी मैंने साइन बना दिया, तो क्या होगा, ये होगा साइन ऑफ 90 माइनस a by 2. What is sine of 90 minus theta? It is cos theta. Hence proved sine of b plus c upon 2 is equal to cos of a by 2. प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था. गॉट इट.